Good morning, students. Today our next lecture is on common emitter transistor. In the last lecture we have studied about common base transistor. तो start करते हैं common emitter transistor. Now, in this configuration, emitter terminal is taken as common for both input and output of the transistor. ठीक है, मतलब एमीटर की जो वोल्टेज है, जो रीजन है हमारे पास, इज टेकन एज कॉमन फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर. ठीक है, मतलब एमीटर विल अपीयर बोथ इन इनपुट एंड इन आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर. एमीटर बेस्ड जंक्शन is basically forward bias and collector emitter junction is reverse biased, where emitter base is your input section is forward bias and collector emitter junction is your output section and is generally reverse bias. So you can see here emitter is appearing in the input section as well as in the output section also. Next is the circuit diagram for the common emitter transistor. You can see here this is the symbol of a NPN transistor. ठीक है, and here this emitter terminal is made common. You can also make this is grounded. Okay, now you can see here that IB base current is acting like a input current and IC collector current is acting like a output current. VI indicates for the input signal जिसको हमने करना है amplify and V output is the amplified signal. RL is your load resistance. IE indicates for emitter current. VEB is the battery which we used to forward bias the input section and VCE is the reverse bias battery which is used to reverse bias the output section. IB act as input current, IC act as output current. Next is current amplification factor बीटा. जैसे कि हमने स्टडी किया था इन केस ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, इन द सेम वे यहाँ पर हमारे पास जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है बीटा, that is given by change in the output current divided by change in input current when output voltage, that is VCE, is made constant. That is beta AC is given by change in IC by change in IB when VCE collector emitter voltage is made constant. इसके बाद है expression for the collector current. Now collector current is the output current here. IC is equal to alpha IE plus I leakage as we know already from the common base transistor, and IC is equal to alpha IE plus में ICBO collector base open. कब होता है? जब हमारे पास आउटपुट collector base junction क्या हो आपका रिवर्स बायस हो हमारे पास. नाउ IC is equal to alpha IB plus IC, ये टर्म आपकी है इट इज. नाउ इट गिव्स, अगर आप इससे वैल्यू निकालते हो IC की, IC इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा IB प्लस 1 बाय 1 माइनस अल्फा ICB. इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर से निकाल चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा. नाउ हियर यू कैन सी डेट IC जो हमने निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकालना हुआ है, जो कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का. यहाँ हम IC कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा. हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू व्हाट, IC बाय IB, देन IC बाय IE माइनस IC, बिकॉज IB क्या होता है आपका IE माइनस IC. सो डिवाइडिंग करेंगे द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय IE, तो IC बाय IE यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर आ गया, माइनस IC बाय IE यहाँ पर आ गया. ये होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा. सिमिलरली 1 प्लस बीटा क्या होता है, मतलब अगर इसके अंदर 1 ऐड कर दें, व्हाट यू विल गेट हियर हम टेकिंग एलसीएम 1 बाय 1 माइनस अल्फा. तो हम अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा और 1 बाय 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बीटा और 1 प्लस बीटा रिस्पेक्टिवली के द्वारा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. ठीक है,
then your equation number 1 becomes simply IC is equal to बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। तो हमने कलेक्टर करंट को इवेल्युएट कर लिया है इन टर्म्स ऑफ बीटा, जो कि है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर। अगेन वी आर हैविंग 3 काइंड, बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे ओनली 2 काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन होती है, इट इज इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज सिंपली रिलेशन होता है बिटवीन VBE बेस एमीटर वोल्टेज एंड IB इनपुट करंट के बीच में। कब? व्हेन द कलेक्टर एमीटर वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, सो सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ VBE को वेरी करेंगे स्मॉल स्टेप्स के अंदर, और उसके कोरोस्पोंडिंग हम बेस करंट में कितना चेंज आया है उसको नोट करेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान हमने जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को करना है कांस्टेंट। ठीक है, सो what we observe that input characteristics are similar to that of forward bias diode। क्यों? because emitter base junction is forward bias। क्योंकि हम जानते हैं एमीटर बेस जंक्शन क्या फॉरवर्ड बायस है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमारे पास, that would be similar to that of a forward biased diode। सिंपल सी बात है, बिकॉज हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात कर रहे हैं ग्राफ बिटवीन VBE एंड IB, और जो कि क्या है फॉरवर्ड बायस है, तो वो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की तरह ही एक्ट करेगी। इसका जो हमारे पास ग्राफिकल रिलेशन है वो इस तरह से है कुछ। सो दिस ग्राफ इज अ रिलेशन बिटवीन VBE एंड IB, एंड IB इज अ करंट हैविंग यूनिट माइक्रो एम्पियर, बिकॉज IB जो बेस रीजन है उसकी विड्थ भी कम होती है और डोपिंग भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू एमीटर एंड कलेक्टर रीजन, इसलिए बेस करंट को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पियर। सो जो ये कर्व है, ये कर्व किस की है, ये कर्व दिखाता है फॉरवर्ड बायस डायोड की। ठीक है, सो अच्छा, अगर हम बात करते हैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम फॉर दी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ये पर ट्रांजिस्टर है, दीज आर दी एमीटर्स विच आर यूज टू मेजर दी करंट, ये माइक्रो एम्पियर के लिए है और ये मिली एम्पियर के लिए। These are the voltmeter to measure the voltage in the input section and output section. These are the resistances which are used to control the amount of current passing in the input as well as output section. ये हमारे पास बैटरीज है। VBE is used to forward bias the input section and VCE is used to reverse bias the output section। ठीक है, करंट की डायरेक्शंस आपको बताइए कैसे आई हमारे पास, ये फिर से बता दो आपको से। ये PNP ट्रांजिस्टर यानी कि हमारे पास एमीटर क्या आपका P टाइप है, बेस हमारे पास क्या N टाइप है, और कलेक्टर हमारे पास क्या P टाइप है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो P टाइप है, तो यानी कि होल्स मूव करेंगे P से N की तरफ, एरो दिखा रहा है हमारे पास ये, और होल्स की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आपका करंट है वो इसी तरफ मूव करेगा, यानी कि आपका एमीटर करंट एंटर कर रहा है। और हम जानते हैं एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट, तो जितना करंट आपका एंटर कर रहा है उतना ही करंट आपका बाहर निकलेगा। तो IB और IC क्या है, आउटसाइड है। अगर आपका एमीटर करंट एंटर कर रहा है तो IB और IC क्या आपके आउटसाइड में बाहर निकलेंगे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू IB प्लस IC। When the input characteristics are plotted for a negatively higher value of VCE, slope of curve decreases। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ जो लिखा हुआ है इसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले हमारे पास VC यहाँ पे 0 था, फिर -0.1 हुआ, फिर -0.2 हुआ, यानी कि अगर हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यू को नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, नेगेटिवली इंक्रीज करते हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, जो स्लोप है वो कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब क्या है, हमारे पास जो करंट की वैल्यू है, बेस करंट की वैल्यू है, वो क्या हो रही है, उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब VCE को नेगेटिवली इंक्रीज करने पर चेंज इन या फिर इंक्रीज इन बेस करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है आपका है फिर से अर्ली इफेक्ट, क्योंकि अगर हम VCE को इंक्रीज करेंगे मतलब क्या है कि हम कलेक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हैं। अगर VCE बढ़ेगा
हम जानते हैं VCE क्या होता है. व्हाट इज VCE? VCE मीन्स VC माइनस VE. ठीक है. और अगर इसकी जो वैल्यू है नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब होगी हमारे पास? व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव. व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव. ठीक है. अगर ये नेगेटिव है हमारे पास, मतलब क्या है कि जो हमारे पास कोलेक्टर जंक्शन है, जो कोलेक्टर बेस जंक्शन है, डेट बिकम्स रिवर्स बायस. उसके रिवर्स बायस से क्या होगा होने से जो पोटेंशियल बैरियर है, डिप्लीशन लेयर की वैल्यू है, वो बेस के अंदर भी और कलेक्टर के अंदर भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. बट बेस के अंदर डोपिंग कम है, तो इसलिए बेस के अंदर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज करेगी. यानी कि बेस की जो अफेक्टिव विड्थ है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन होता है, उस विड्थ को बोलते हैं अफेक्टिव विड्थ. अफेक्टिव विड्थ की जो वैल्यू है वो लगातार डिक्रीज कर रही है. अगर अफेक्टिव विड्थ डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो रिकम्बिनेशन है वो कम होगा. अगर इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन कम होगा हमारे पास, तो जो बेस करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी. बिकॉज बेस करंट जनरेट होता ही क्यों है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बिनेशन. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि VCE को नेगेटिवली इंक्रीज करने पर हमारे पास जो बेस करंट में चेंज आता है वो डिक्रीज जाता है. ठीक है. तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, उसकी वर्डिंग्स, उसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें. तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास ये है कि इन द कॉमन, ये सारा हो चुका है. हाँ, नेक्स्ट है द इनपुट रेजिस्टेंस RI. RI इज गिवन बाय डेल्टा VBE एंड बाय में डेल्टा IB. ठीक है. इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट. सो एज यू सी हियर दैट डेल्टा IB की जो वैल्यू है इज लेसर एज कंपेयर टू डेल्टा IE. ठीक है. अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जो डेल्टा IB कम है किससे? डेल्टा IE से. तो हम कहेंगे जो इनपुट रेजिस्टेंस है कॉमन एमीटर के अंदर वो कम होता है, वो कम होता है एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ, सॉरी देखो ये तो हमारे पास है इनपुट रेजिस्टेंस किसके लिए? कॉमन एमीटर के लिए. अगर मैं बात करता हूँ इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द कॉमन बेस, क्या था आपका? वो डेल्टा VBE बाय में डेल्टा IE. ठीक है. देखो दोनों के अंदर ये टर्म तो सेम है, यानी कि जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर. अगर इसकी वैल्यू कम है, अगर ये कम है हमारे पास, तो ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इससे. बात समझ रहे हो ना? जो ये वैल्यू है डेल्टा डेल्टा IB कम है किससे? डेल्टा IE से. अगर ये कम है तो ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा है तो कम होगा. यानी कि इसने बोलते हैं जो कॉमन एमीटर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है, हाइयर होता है एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब इसका कारण क्या है कि डेल्टा IB कम होता है एज कंपेयर टू डेल्टा I. डेल्टा IB कम होता है एज कंपेयर टू डेल्टा I. वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज लेस इन बेस रीजन एज कंपेयर टू होल कंसंट्रेशन इन एमीटर रीजन. ठीक है ना? ऑब्वियसली बात है, हमारे पास बेस रीजन के अंदर डोपिंग कम होती है एज कंपेयर टू एमीटर एंड बेस. हम बता चुके हैं जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर को बनाते हैं तो हम बेस की डोपिंग को कम रखते हैं. अगर बेस में डोपिंग कम है तो मतलब क्या है कि बेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, और एमीटर के अंदर होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है हमारे पास. तो ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है हमारे पास तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में कम होगा हमारे पास. अगर ग्रेडियंट कम है हमारे पास तो डिफ्यूजन भी कम होगा. अगर डिफ्यूजन कम है हमारे पास तो बेसिकली जो आपका बेस करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है. तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट है इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, वो है ग्राफ होगा बिटवीन VCE वर्सेस IC. और व्हेन हम इनपुट करंट को करते हैं कांस्टेंट, यानी कि आपका IB होगा कांस्टेंट. ठीक है. सो वही है, वैल्यू ऑफ VCE इज वेरिड इन स्मॉल स्टेप्स एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ IC इज नोटेड व्हाइल कीपिंग IB कांस्टेंट. सेम है हमारे पास, इस पे ले गया था हमने.
तो इसके फिर से 3 रीजन हमारे पास, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन। एक्टिव में क्या होता है हमारे पास, एमीटर बेस जंक्शन होता है आपका फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर एमिटर जंक्शन होता है आपका रिवर्स बायस। और इस रीजन में क्या होता है हमारे पास, फॉर ए फिक्स्ड बेस करंट IC डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट इंक्रीज विद VCE ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। क्लियर सी बात है कि क्या बोल रहा है कि अगर आप VCE को इंक्रीज करते हैं तो IC की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती बट इंक्रीज करती है। बता चुका हूँ। अर्ली इफेक्ट के कारण क्या होता है, अर्ली इफेक्ट से बेस की जो इफेक्टिव विड्थ है रिड्यूस होती है। उससे क्या होता है, मोस्टली जो चार्ज कैरियर्स है जो एमीटर से स्टार्ट हुए थे फ्लो करना, वो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे क्योंकि बेस की जो विड्थ है वो कम हो गई है। तो मतलब क्या है, कलेक्टर में पहुंच गया तो मतलब क्या है इसका मतलब, कलेक्टर करंट आपका इंक्रीज कर गया। तो इसलिए बोल रहा है जितना VCE को इंक्रीज करोगे उतनी बेस विड्थ कम होगी, उतना ही आपका जो IC है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट, if the transistor is to be used as a linear amplifier it should be operated in the active region। ऑब्वियसली बात हम क्या देख रहे हैं, इसमें जो IC की वैल्यू है लगातार इंक्रीज कर रही है, तो इसलिए बोलते हैं अगर आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है तो हम इसको हमेशा एक्टिव रीजन के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कट ऑफ रीजन, वो हमारे पास कट ऑफ रीजन। Next है cut off region. Now, in cut off region, we make both emitter base junction and collector emitter junction reverse bias। दोनों करते हैं रिवर्स बायस। अगर दोनों रिवर्स बायस हो गए तो हम क्या कहेंगे, इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर इज ऑफ। आपका जो ट्रांजिस्टर है बंद हो गया है और कलेक्टर करंट बिकम्स ऑलमोस्ट 0। ठीक है, ओके। एंड VCE इज इक्वल टू VCC बिकॉज E के ऊपर और C के ऊपर वोल्टेज जो है बराबर हो जाती है, इसलिए बोलते हैं VCE इज इक्वल टू VCC। ठीक है। ट्रांजिस्टर इज वर्चुअली एन ओपन सर्किट बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। वर्चुअली ओपन मीन्स इस तरह से है कि कलेक्टर और एमीटर आपस में जुड़े ही नहीं है। अगर जुड़े हुए होते तो हमारे पास IC 0 नहीं होता। अब IC 0 मतलब क्या है कि एमीटर और कलेक्टर के बीच में कोई तार जुड़ी हुई नहीं है, ये इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, ये इसका दिखाया हुआ है एक्टिव रीजन। ठीक है, और ये दिखा रखा है इसका कट ऑफ रीजन, इस लाइन से नीचे वाला। लास्ट इसके अंदर है सैचुरेशन रीजन हमारे पास, जब दोनों एमीटर बेस एंड कलेक्टर एमीटर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। और इस कंडीशन में क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए आपका जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन है वो क्या फॉरवर्ड बायस है, तो इसके अंदर खुद का मेजोरिटी कैरियर्स का करंट पास करेगा। यानी कि अब यहाँ पर जो IC है वो इस पर डिपेंड करेगी ही नहीं, क्योंकि पहले तो इसका खुद का करंट था ही नहीं, ये केवल इसका ही करंट अपने अंदर ले रहा था। लेकिन अब इसका खुद का मेजोरिटी करंट हो गया IC, तो इसका जो IC है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं IC बिकम्स ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस करंट, यानी कि IB पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एक सिंपल स्मॉल ओमिक डिवाइस की तरह से काम करेगा। मतलब ओमिक मतलब एक ऐसा, मतलब हमने बैटरी लगा दी, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और आपका आउटपुट मिल रहा है आपको, मतलब एक सिंपल सा करंट है रेजिस्टेंस से पास कर रहा है और आपको वोल्टेज मिल रही है। अब बात करते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस। अगेन डेल्टा VCE बाय में डेल्टा IC, आउटपुट वोल्टेज बाय आउटपुट करंट। ठीक है, जब आपका IB क्या कॉन्स्टेंट है हमारे पास। अब अगेन as the increase in IC is more in common emitter mode as compared to increase in IC in common base mode। अब देखो ये तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन किसके लिए है, कॉमन एमिटर के लिए। अगर हम बात करते हैं कॉमन बेस के लिए, उसमें क्या था, डेल्टा VCE बाय डेल्टा VCB बाय में डेल्टा IC। ठीक है, सो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही हमारे पास, बिकॉज ये भी रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है हमारे पास। तो डेल्टा IC चेक करना हमें। अब देखो ये कह रहा है कि जो डेल्टा IC है वो कॉमन एमीटर में ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ अर्ली इफेक्ट। लेकिन इसकी वैल्यू कॉमन बेस में कम होती है। ठीक है, इसका कारण क्या है, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि जो डेल्टा IC की वैल्यू है कॉमन एमीटर में ज़्यादा होती है। अगर कॉमन एमीटर में ज़्यादा होती है तो ये कम हो जाएगा, अगर यहाँ ज़्यादा कम होती है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है कॉमन एमीटर का वो कम होता है एज कंपेयर टू आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस। ठीक
ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमीटर इज लेस एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस। इसका जो रीजन है, इसका रीजन पीछे लिखा हुआ मैंने यहाँ पर ये वाला कि वाई डेल्टा आई सी इज मोर इन सीई देन सी बी मोड। हम जानते हैं कॉमन एमीटर मोड के अंदर फॉर्मूला होता है इसी का ये वाला, ठीक है। और जहाँ पर बीटा क्या होता है, बीटा होता है अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अगर मान लिया आपने अल्फा को चेंज कर दिया 0.98 से लेकर 985 बाय 0.5%, तो अगर आप पुट करोगे इस वैल्यू को यहाँ पर, एक वैल्यू बीटा 1 आएगी, पुट करेंगे इसको, एक वैल्यू बीटा 2 आएगी। तो हम चेक करते हैं बीटा 1, तो इसके लिए बीटा 1 कितना आ रहा है 49 आ रहा है, और इसके लिए बीटा 2 कितना आ रहा है 66 आ रहा है हमारे पास। यानी कि जब हमने अल्फा को 0.5% चेंज किया तो बीटा के अंदर 34% चेंज आ गया, ठीक है। और कॉमन बेस मोड में जो आईसी डिपेंड कर रहा था अल्फा के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो चेंज कितना है, केवल इतने % का है, और यहाँ पर चेंज आ रहा है कितने का 34% का। यानी कि कॉमन एमीटर मोड में चेंज ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू कॉमन बेस मोड। मतलब क्या है कि जो ये वैल्यू है हमारे पास डेल्टा आई सी ज़्यादा है और डेल्टा आई सी यहाँ पर कम है। अगर ये ज़्यादा है हमारे पास तो हम क्या बोलेंगे, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पे कम है और यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस क्या आपका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।